بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو پر گفتگو کریں گے جو دنیا کے ہر مایوس انسان کے لیے امید کی کرن ہے اور ہر حکمران کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کا معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عظیم جدوجہد کی داستان ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر اور ہمت سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ تاریخ انسانی کا وہ منفرد باب ہیں جہاں ایک معصوم بچہ پہلے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوتا ہے، پھر کنویں کی تاریکی میں پھینکا جاتا ہے، پھر بازار میں بیچا جاتا ہے، پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتا ہے اور آخرکار مصر کے تخت پر براجمان ہو کر دنیا کو بھوک سے بچاتا ہے۔ آغاز وہیں سے کرتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یوسف کو گھر سے نکال کر وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دراصل یوسف کو اس راستے پر ڈال رہے ہیں جو سیدھا بادشاہت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کی تدبیر دیکھیے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اس نیت سے پھینکا کہ وہ گمنام ہو جائیں اور مٹ جائیں، لیکن یہی کنواں ان کی پہلی سیڑھی بن گیا۔ اس اندھے کنویں میں تنہائی تھی، وحشت تھی اور موت کا سایہ تھا۔ ایک نازک بدن بچہ جو باپ کے سائے میں ناز و نام سے پلا تھا اب پتھروں پر بیٹھا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے وہاں چیخ و پکار کر کے اپنی ہمت نہیں ہاری بلکہ اللہ کی ذات سے لکیر لگا لی۔ اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے وحی بھیجی کہ گھبرا مت، یہ کنواں تیرا ٹھکانہ نہیں، یہ تو صرف ایک پڑاؤ ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد قافلہ آیا۔ وہ پانی کی تلاش میں تھے لیکن اللہ انہیں یوسف کی صورت میں ایک ہیرا دینے والا تھا۔ جب ڈول ڈالا گیا اور یوسف علیہ السلام باہر آئے تو وہ آزاد نہیں ہوئے بلکہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیے گئے۔ ذرا سوچئے، ایک نبی کا بیٹا جس کے دادا اور پردادا بھی نبی ہیں، آج اسے چند سکوں کے عوض بیچا جا رہا ہے۔ قافلے والوں نے انہیں بازار کا مال سمجھا، انسان نہیں سمجھا، لیکن یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں تھی بلکہ یہ رضا الہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میرا رب مجھے جہاں لے جا رہا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ غلامی کا یہ سفر انہیں کنعان کے صحراؤں سے نکال کر مصر کی سرسبز و شاداب وادیوں کی طرف لے گیا۔ وہ مصر جو اس وقت کی سپر پاور تھا، جہاں بڑی بڑی عمارتیں، منظم حکومت اور تہذیب و تمدن کا دورہ تھا۔ اللہ اپنے بندے کو اس بڑے میدان میں لا رہا تھا کیونکہ مستقبل میں اسے ایک چھوٹی بستی کا نہیں بلکہ ایک بڑی سلطنت کا نظام سنبھالنا تھا۔ مصر کے بازار میں جب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تو خریداروں کی لائن لگ گئی، لیکن اللہ نے انتظام یہ کیا کہ انہیں مصر کے وزیر خزانہ عزیز مصر نے خریدا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا پلان تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کسی عام گھر میں نہیں بلکہ ایوان اقتدار میں پرورش پائیں۔ وہ دیکھیں کہ حکومت کیسے چلتی ہے، وزراء کیسے کام کرتے ہیں اور ملکی معاملات کیسے سنبھالے جاتے ہیں۔ یوں غلامی کا توق دراصل حکمرانی کی تربیت کا آغاز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں نفع دے۔ یوں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ایک اجنبی ملک میں غلامی کی حالت میں بھی عزت اور ٹھکانہ عطا کر دیا۔ یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تربیتی دور شروع ہوا۔ بچپن سے جوانی تک کا سفر اسی شاہی ماحول میں طے ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم، دانائی اور علم عطا کیا۔ یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں حکم سے مراد فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور معاملہ فہمی ہے، جبکہ علم سے مراد دین کی سمجھ اور تعبیر خواب کا علم ہے۔ یوسف علیہ السلام محل میں رہتے ہوئے عزیز مصر کے دست راست بن گئے۔ وہ گھر کے انتظامات، حساب کتاب اور دیگر معاملات کو اتنی خوش اسلوبی سے چلاتے کہ عزیز مصر ان پر اندھا اعتماد کرنے لگا۔ یہ بات ہمارے نوجوانوں کے لیے سمجھنے کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے غلامی کو رکاوٹ نہیں بنایا بلکہ اپنی صلاحیتوں سے اپنا مقام پیدا کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ انسان عہدے سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ اپنے کردار اور محنت سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اقتدار تک پہنچنے کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ جب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے تو آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر سب سے بڑی آزمائش زلیخا کی صورت میں آئی۔ یہ آزمائش صرف گناہ سے بچنے کی نہیں تھی بلکہ یہ خیانت سے بچنے کا امتحان تھا۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی اور یوسف علیہ السلام اس کے شوہر کے زیر سایہ تھے۔ اگر وہ اس گناہ کی طرف مائل ہو جاتے تو یہ اپنے محسن کے ساتھ سب سے بڑی خیانت ہوتی۔ ایک حکمران کے لیے سب سے اہم خوبی اس کا کردار ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا وہ قوم پر حکمرانی کیسے کر سکتا ہے؟
अल्लाह ने यूसुफ अलैहि अस्सलाम को इस भट्टी से गुजारा ताकि वो कुंदन बन जाएं। जब जुलेखा ने बंद कमरे में गुनाह की दावत दी तो यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने मेआज़े अल्लाह कहकर ठुकरा दिया। उन्होंने जेल की कोठरी को गुनाह के महल पर तरजीह दी। ये इनकार उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। जुलेखा ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया, औरतों ने अय्याराना चालें चली और बालाखर उन्हें कैद खाने भेज दिया गया। बज़ाहिर ये जवाल था महल से जेल का सफर, लेकिन हकीकत में ये तख्त की तरफ अगला कदम था, क्योंकि महल में वो सिर्फ वो अजीज के गुलाम थे, लेकिन जेल से जब वो निकलेंगे तो अजीज मिस्र के हाकिम ही बनकर निकलेंगे। जेल जाने का फैसला भी अल्लाह की हिकमत थी। बाहर का माहौल साजिशों और फितनों से भरा हुआ था। अल्लाह ने यूसुफ अलैहि अस्सलाम को कुछ अरसे के लिए दुनिया के हंगामों से अलग कर दिया ताकि वो यकसुई के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करें और रूहानी तरबियत मुकम्मल कर सकें। ये कैद तन्हाई दरअसल उनकी खलवत थी, जहां मुस्तकबिल के बादशाह की रूहानी और ज़हनी आबियारी हो रही थी। जेल में उनके साथ क्या बीती और वहां उन्होंने कौन से ऐसे काम किए जिसने बादशाह मिस्र को उनकी तरफ मुतवज्जे किया, ये दिलचस्प हालात हम अगले बाब में बयान करेंगे। मेरे दोस्तों, जेल की ऊंची दीवारें और आहनी सलाखें बज़ाहिर इंसान की आज़ादी छीन लेती हैं, लेकिन अगर इंसान का दिल आज़ाद हो और ताल्लुक बिल्लाह मजबूत हो तो कैद खाना भी इबादत का बन जाता है। हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम जब जेल में दाखिल हुए तो वहाँ का माहौल इंतहाई मायूस कुन था। मुजरिम, चूर, डाकू और मायूस लोग वहाँ पड़े सड़ रहे थे, लेकिन यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने वहाँ जाते ही एक ही इस्लाही तहरीक शुरू कर दी। अब सिर्फ एक कैदी बनकर कोने में नहीं बैठे, बल्कि अपने लोगों की खिदमत शुरू कर दी, बीमारों की तीमारदारी की, दुखी दिलों को तसल्ली दी और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। जेल के लोग आपके अखलाक और किरदार से इतने मुतासिर हुए कि आपको अपना मुर्शिद और रहनुमा मानने लगे। कुरान गवाह है कि जब दो कैदियों ने ख्वाब देखा तो वो ताबीर पूछने के लिए यूसुफ अलैहि अस्सलाम के पास आए और कहा, बेशक हम आपको नेक लोगों में से देखते हैं। ये इस बात का सबूत था कि जेल में भी आपका किरदार चमक रहा था। वो दो कैदी बादशाह के दरबारी थे, एक शराब पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची। उन्होंने अपने अपने ख्वाब सुनाए। यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के दिए हुए इल्म से ताबीर बताई कि शराब पिलाने वाला रहा होकर दोबारा नौकरी पर बहाल होगा और बावर्ची को सजाए मौत मिलेगी। साथ ही यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने शराब पिलाने वाला से कहा, जब तुम बादशाह के पास जाओ तो मेरा जिक्र जरूर करना कि एक बेगुनाह शख्स कैद में पड़ा है। यहाँ एक लतीफ नुक्ता समझने का है। यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने एक इंसान से मदद का सहारा लिया। अल्लाह को अपने महबूब बंदे की ये अदा पसंद न आई। अल्लाह चाहता था कि यूसुफ की रिहाई का सहरा किसी शराब पिलाने वाला के सर ना हो, बल्कि खुद अल्लाह के दस्त कुदरत से हो। चुनांचे शराब पिलाने वाला बाहर जाकर भूल गया और यूसुफ अलैहि अस्सलाम को मजीद कई साल जेल में रहना पड़ा। ये ताखीर दरअसल अल्लाह की तरबियत का हिस्सा थी ताकि यूसुफ अलैहि अस्सलाम का तवक्कल मुकम्मल तौर पर सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर हो जाए। 7 या 9 साल का तवील अरसा जेल में गुजर गया। जवानी के बेहतरीन साल कैद में कट गए, लेकिन यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने कभी शको नहीं किया। वो सब्र के साथ अल्लाह के वक्त का इंतजार करते रहे और फिर वो रात आ गई जिसने मिस्र की तकदीर बदल दी और यूसुफ की तकदीर भी। मिस्र के बादशाह, जिसका नाम रियान बिन वलीद बताया जाता है, ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। इसने देखा कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 कमजोर और दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 हरी भरी बालियां हैं और 7 बिल्कुल खुश्क। बादशाह पसीने में शराबूर होकर उठ बैठा। इस ख्वाब की दहशत इसके दिल पर बैठ गई। इसने सुबह होते ही तमाम नजूमियों, काहिनों और दानिश्वरों को तलब किया। दरबार लगा। बादशाह ने ख्वाब सुनाया, लेकिन मिस्र के बड़े बड़े इल्म वाले आजिज आ गए। उन्होंने कहा, ये तो ख्यालात की परेशानी है, इसकी कोई ताबीर नहीं। अल्लाह ने इन सब की अक्लों पर पर्दा डाल दिया था, क्योंकि अल्लाह चाहता था कि इस ख्वाब की गुत्थी सिर्फ यूसुफ अलैहि अस्सलाम सुलझाएं और यही ख्वाब उनकी रिहाई का परवाना बने। इस मायूसी के आलम में अचानक वो साकी, जो अब बादशाह को शराब पिला रहा था, चौंक उठा। इसे जेल का वो नेक कैदी याद आ गया। इसने बादशाह से कहा, मैं आपको इसकी ताबीर बता सकता हूँ, मुझे जरा जेल जाने की मोहलत दीजिए। बादशाह ने फौरन इजाजत दे दी। साकी भागा भागा जेल पहुंचा। वहां यूसुफ अलैहि अस्सलाम इसी इत्मीनान और सुकून के साथ मौजूद थे। साकी ने कहा, यूसुफ, ए सच्चे इंसान, हमें इस ख्वाब का मतलब बताओ। जरा यूसुफ अलैहि अस्सलाम के ज़र्फ को देखिए। वो चाहते तो साकी से गल्ला करते कि तुम कितने बेवफा हो, मुझे भूल गए। अशर्त रखते कि ओ पहले रिहाई का ऑर्डर लाओ फिर बताऊंगा। लेकिन नहीं, वो नबी थे, उनके दिल में कौम का दर्द था। वो जानते थे कि ये ख्वाब आने वाले कहत की वार्निंग है। अगर ताबीर न बताई तो हजारों लोग भूख से मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने फौरन ताबीर बता दी और साथ में हल भी बता दिया। हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने ताबीर बताई,
तुम 7 साल तक मुसलसल खेती बाड़ी करोगे। उन सालों में खूब अनाज पैदा होगा। तुम इस अनाज को इसकी बालियों में ही रहने देना ताकि वो खराब ना हो, सिवाय थोड़े से हिस्से के जो तुम खाओ। फिर उसके बाद 7 साल सख्त कहत के आएंगे जो वो सारा जखीरा खा जाएंगे। इसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें खूब बारिश होगी और लोग रस निचोड़ेंगे। ये सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं थी, बल्कि ये एक मुकम्मल माशी मंसूबा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि आने वाले 15 सालों में क्या होने वाला है और उसका मुकाबला कैसे करना है। उन्होंने बचत और स्टोरेज का फलसफा समझाया। शराब पिलाने वाला ने वापस आकर बादशाह को ये ताबीर सुनाई। बादशाह दंग रह गया। इसने महसूस किया कि ये ताबीर बताने वाला कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि बहुत गहरी बसीरत रखने वाला शख्स है। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे फौरन मेरे पास लाओ। शाही कासिद जेल पहुंचे। मुबारक हो यूसुफ, बादशाह ने तुम्हें याद किया है, रिहाई का हुक्म आ गया है। आम कैदी होता तो खुशी से छलांगे मारता बाहर निकल आता, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुददारी और इज्जत नफस इजाजत नहीं देती थी कि वो एक मशकूक किरदार के तौर पर बाहर आएं। उन पर जो इखलाकी इल्जाम लगा था वो इसे धोना चाहते थे। आपने फरमाया, वापस जाओ अपने बादशाह के पास और इससे पूछो कि इन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। ये पैगाम जब बादशाह को मिला तो वो और ज्यादा मुतासिर हुआ। इसने कहा, ये शख्स कितना बाउसूल है, इसे लालच नहीं है, इसे अपनी इज्जत प्यारी है। बादशाह ने फौरन तहकीकात का हुक्म दिया। जुलेखा और दीगर औरतों को बुलाया गया। सब ने एतराफ जुर्म कर लिया। जुलेखा पुकार उठी, अब हक खिलकर सामने आ गया। मैंने ही इसे फिसलाने की कोशिश की थी और वो सच्चों में से है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी पर सरकारी मेहर लग गई, तब अब जेल से बाहर तशरीफ लाए। ये मंजर दीदनी था। वो शख्स जो कभी बड़ोहे में जकड़ा हुआ था, आज बादशाह इसका मुंतजिर था। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बातचीत की तो उनकी दानाई, उनका अंदाज गुफ्तगू और उनका इल्म देखकर गिरविदा हो गया। बादशाह ने कहा, आज से तुम हमारे पास बहुत बाइख्तियार और काबिले एतमाद हो। अब यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। उन्होंने देखा कि मुल्क आने वाले वक्त में बड़े बुहरान का शिकार होने वाला है और मौजूदा वज़रा नाअहल और करप्ट हैं। अगर इंतजाम उनके हाथ में रहा तो कहत में तबाही मच जाएगी। इसलिए अपने खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी मांगी। फरमाया, मुझे जमीन के खजानों, वजारत खजाना और ज़राअत पर मुकर्रर कर दे। मैं हिफाजत करने वाला, दियानतदार भी हूँ और इल्म रखने वाला, माहिर भी हूँ। ये उहदे की तलब नहीं थी, बल्कि एक खिदमत का एहसास था। ये नाअलिफिलों से इक़्तिदार छीन कर अहल हाथों में लेने की कोशिश थी। बादशाह ने फौरन मंजूर कर लिया और यूं अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से सीधा मिस्र के इक़्तिदार के ऐवानों में बिठा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इक़्तिदार संभालते ही कौन से इनकलाबी इक़दामात किए, कहत से निमटने के लिए वो कौन सी हिकमत अमली थी जिसे आज की दुनिया भी मानती है, ये हम अगले बाब में तफसील से देखेंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब मिस्र के सियाह और सफेद के मालिक बन चुके थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, और इसी तरह हमने यूसुफ को जमीन मिस्र में इक़्तिदार बख्शा, वो जहाँ चाहते अपना ठिकाना बनाते। ये वही सरजमीन थी जहाँ कभी वो गुलाम बनकर बके थे। आज वो इसी जमीन के हुक्मरान थे। लेकिन इक़्तिदार मिलने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम आराम से नहीं बैठे, बल्कि फौरन अपने मिशन पर लग गए। पहले 7 साल खुशहाली के थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन सालों में ज़राअत पर भरपूर तवज्जो दी। नहरें खुदवाईं, बंजर जमीनों को आबाद किया और किसानों को तरगीब दी कि ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाएं। जब फसल कटती तो अपने हुक्म दिया कि जरूरत के मुताबिक अनाज खाया जाए और बाकी सारा अनाज सरकारी गोदामों में महफूज कर लिया जाए। अपने अनाज को महफूज रखने की जो तकनीक इस्तेमाल की, यानी इसे बालियों के अंदर ही रहने देना, वो आज की जदीद साइंस भी तस्लीम करती है कि इस तरह अनाज कीड़ों और नमी से महफूज रहता है। 7 साल गुजर गए, गोदाम अनाज से भर गए और फिर वो वक्त आ गया जब आसमान से बारिश रुक गई और जमीन खुश्क हो गई। कहत साली ने मिस्र और उसके आसपास के इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। दरियाए नील का पानी कम हो गया, खेत वीरान हो गए, लोग भूख से बिलकने लगे। लेकिन मिस्र में एक सुकून था, क्योंकि वहाँ एक उदाना हुक्मरान बैठा था जिसने पहले से इंतजाम कर रखा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सरकारी राशन का निजाम शुरू किया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हर खानदान को इसकी जरूरत के मुताबिक गल्ला मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। लोग दूर दूर से कनान, फलस्तीन और शाम से सफर करके मिस्र आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद निगरानी करते, इस बात को यकीनी बनाते कि कोई भूखा ना रहे और कोई जखीरा अंदोजी ना करे। ये दुनिया का पहला मुनज़्ज़म फूड सिक्योरिटी सिस्टम था। इसी दौरान कनान ने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का खानदान भी कहत की जद में था। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों,
यूसुफ के 10 भाइयों से कहा, सुना है मिस्र का बादशाह रहमदिल है और गल्ला तकसीम कर रहा है, तुम जाओ और कुछ अनाज ले आओ। वो भाइयों ने सफर की तैयारी की। वो 10 भाई थे, लेकिन सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को वालिद ने अपने पास रोक लिया, क्योंकि यूसुफ के गुम होने के बाद अब वही उनकी जिंदगी का सहारा थे। 10 भाइयों का काफिला मिस्र पहुंचा। जब वो शाही दरबार में दाखिल हुए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर जलवा अफरोज थे। 40 साल गुजर चुके थे। भाइयों के वहम व गुमान में भी नहीं था कि ये बादशाह हमारा वही भाई यूसुफ है जिसे हमने कुनवे में फेंका था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहली नजर में ही उन्हें पहचान लिया। उनके चेहरों पर वही पुराने नकूश थे, वही अंदाज था। दिल में एक टीस उठी, लेकिन नबी का ज़ब्त देखिए, चेहरे पर कोई तासुर नहीं आने दिया। अनजान बन गए। अपने उनसे सवालात किए, कौन हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, हम कनान से आए हैं, हजरत याकूब के बेटे हैं। अपने जान बोझ कर पूछा, क्या तुम अकेले हो या और भी भाई हैं? उन्होंने कहा, हम 12 भाई थे, एक जंगल में गुम हो गया, एक वालिद के पास है और हम 10 यहाँ हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी खूब मेहमान नवाजी की, उन्हें इज्जत दी, उनकी बोरियां गल्ले से भर दें। लेकिन रुखसत करते वक्त एक शर्त ई रख दी। फरमाया, अगर तुम दोबारा गल्ला लेने आना चाहते हो तो अगली बार अपने इस 11वें भाई बिन्यामीन को भी साथ लाना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। अगर इसे ना लाए तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक दाना भी नहीं होगा और ना तुम मेरे करीब आना। भाई परेशान हो गए कि वालिद तो बिन्यामीन को भेजने पर राजी नहीं होंगे। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मुलाजिमीन को इशारा किया कि उन भाइयों ने जो कीमत पूंजी दी है वो भी चुपके से उनके सामान में वापस रख दो। ये उनकी सखावत भी थी और एक हिकमत भी, ताकि जब वो घर जाकर देखें तो एहसानमंद हों और दोबारा आने पर मजबूर हों। हजरात, भाई वापस कनान पहुंचे। बोरी खोली तो देखा कि गल्ला भी मौजूद है और पैसे भी वापस आ गए हैं। वो खुशी से चिल्ला उठे, अब्बा जान, देखिए, हमारी पूंजी भी लुटा दी गई। कितना करीम बादशाह है। लेकिन इसने शर्त रखी है कि अगली बार भाई बिन्यामीन को साथ लाना होगा, वरना गल्ला बंद। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सख्ती से इनकार कर दिया। क्या मैं तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा पहले यूसुफ के मामले में किया था? हरगिज नहीं। लेकिन जब राशन खत्म होने लगा और भूख ने सताया तो भाइयों ने फिर मिन्नत समाजत की, अल्लाह की कसमें खाएं, पुख्ता अहद किया। आखिरकार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दिल पर पत्थर रख कर इजाजत दी और फरमाया, अल्लाह ही बेहतरीन मुहाफिज है। साथ ही नसीहत की कि एक शहर में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि अलग अलग दरवाजों से जाना। ये उनकी शफकत थी कि कहीं इतने कड़ियल जवानों को इकट्ठा देखकर किसी की नजर ना लग जाए। भाई बिन्यामीन को लेकर दोबारा मिस्र पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशी का ठिकाना ना था। उन्होंने शाही मेहमान खाने में दो भाइयों को एक साथ ठहराया और बिन्यामीन को अपने साथ रखा। तन्हाई में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकाब उलट दिया और बिन्यामीन को गिले लगाकर रो पड़े। फरमाया, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। बिन्यामीन की आंखों में आंसू आ गए। दोनों भाइयों ने बरसों की जुदाई के गम बांटे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को तसल्ली दी, अब तुम गम न करना, मैं तुम्हें अपने पास रोक लूंगा, बस तुम मेरा साथ देना। अब मसला ये था कि बिन्यामीन को कानूनी तौर पर कैसे रोका जाए। मिस्र का कानून इजाजत नहीं देता था कि किसी आजाद गैर मुल्की को जबरदस्ती रखा जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वही से एक तदबीर बनाई। जब काफिले का सामान लोड हो रहा था तो एक कीमती शाही प्याला पैमाना चुपके से बिन्यामीन की बोरी में छुपा दिया गया। काफिला रवाना हुआ तो पीछे से आवाज आई, ये काफिले वाल, रुक जाओ, तुम चोर हो। भाइयों ने पलट कर कहा, अल्लाह की कसम, हम चोर नहीं हैं। अगर हम झूठे निकले तो तुम जो सजा चाहो दे देना। पूछा गया, तुम्हारे यहाँ चोर की क्या सजा है? उन्होंने कहा, हमारी शरीयत याकूबी में चोर की सजा ये है कि इसे गुलाम बना लिया जाता है। बस यही यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे। तलाशी शुरू हुई। पहले बड़े भाइयों की बोरियां देखी गईं, फिर आखिर में बिन्यामीन की बोरी से वो प्याला निकल आया। भाइयों के सर शर्म से झक गए। उन्होंने बिन्यामीन को मलामत की और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिन्नत की, ए अजीज, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, अब इसकी जगह हम में से किसी को रख लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माआज अल्लाह, हम बेगुनाह को कैसे पकड़ सकते हैं? हम सिर्फ इसी को रखेंगे जिसके पास माल मिला है। भाई मायूस होकर वापस लूटे, सिवाय बड़े भाई के जिसने वहीं रुकने का फैसला किया। जब ये खबर कनान पहुंची तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का गम ताज़ा हो गया। हाय यूसुफ, वो इतना रोए कि बीनाई चली गई, लेकिन उनकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। उन्होंने फरमाया, करीब है कि अल्लाह उन सब को यूसुफ, बिन्यामीन और बड़ा बेटा मेरे पास ले आए।
उन्होंने बेटों को हुक्म दिया, जाओ, दोबारा जाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो। ये बाप का यकीन था, नबुवत की बसीरत। बाप का दिल कह रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। और वाकई अगली मुलाकात वो थी जिसमें सारे राज खिलने वाले थे। मेरे दोस्तों, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर भाई तीसरी बार मिस्र पहुंचे। इस बार उनकी हालत बहुत काबिल रहम थी। कहत ने उनकी कमर तोड़ दी थी, पैसे खत्म हो चुके थे और वो कुछ हकीर सी पूंजी, खोटे सके मामूली सामान लेकर आए थे। वो दरबार यूसुफ में पेश हुए और इंतहाई आजिजी से फरियाद की, ए अजीज मिस्र, हमें और हमारे घर वालों को सख्त तकलीफ पहुंची है। हम बहुत मामूली पूंजी लाए हैं, अब हमें पूरा गल्ला दे दें और हम पर खैरात सदका करें, बेशक अल्लाह सदका देने वालों को जजा देता है। ये मंजर बड़ा अजीब था। वो भाई जो कभी ताकत के नशे में थे, जिन्होंने यूसुफ को कुनवे में फेंका था, आज वही भाई इस यूसुफ के सामने भिखारी बनकर खड़े थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। वो अब मजीद बर्दाश्त न कर सके। वो जान गए कि अल्लाह का वदा पूरा हो चुका है और भाइयों का गुरूर खाक में मिल चुका है। अब वक्त आ गया था कि निकाब उलट दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे एक सवाल किया जिसने उनके पैरों तले जमीन निकाल दी। क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया था जब तुम नादान थे? ये नाम, ये लहजा और यूसुफ का जिक्र। भाइयों ने चौंक कर सर उठाया। उन्होंने गौर से अजीज मिस्र के चेहरे को देखा। वो नकूश जो सालों की गर्द में छप गए थे अचानक उभर आए। उनकी जुबानें लड़खड़ाईं और कांपते हुए पूछा, क्या वाकई क्या आप ही यूसुफ हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्करा कर फरमाया, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। बेशक जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह नेक लोगों का अजर ज़ाय नहीं करता। ये सुनना था कि भाइयों पर सकते का आलम तारी हो गया। शर्मिंदगी, खौफ और पछतावे के मिले जले जज्बात ने उन्हें घेर लिया। वो सोच रहे थे कि अब यूसुफ हमसे बदला लेगा, हमें कैद करेगा, कत्ल करवा देगा। उन्होंने सर झुकाकर एतराफ किया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी है और बेशक हम ही खतावार थे। लेकिन कुर्बान जाए यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक पर। एक बादशाह जिसके पास पूरी ताकत थी, जिसके सामने इसके मुजरिम भाई खड़े थे, इसने इंतकाम लेने के बजाय वो तारीखी जुमला कहा जो दुनिया की तारीख में मुआफी की सबसे बड़ी मिसाल है, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। सिर्फ मुआफ नहीं किया बल्कि उनकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए ये भी नहीं कहा कि तुमने बुरा किया, बल्कि सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। ये है नबी किरदार। यह है वो उरूज जो कुनवे से शुरू हुआ और ए मुआफी के तख्त ऊपर मुकम्मल हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने वालिद की फिक्र की। पूछा, बाबा जान कैसे हैं? भाइयों ने बताया कि वो अब की जुदाई में रू रू कर नाबीना हो चुके हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज उतारी और फरमाया, मेरी यह कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी और फिर अपने सारे घर वालों को लेकर मेरे पास मिस्र आ जाओ। हजरात, काफिला कमीज लेकर मिस्र से रवाना हुआ। अभी वो रास्ते में ही थे, सैकड़ों मील दूर कनान में बैठे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने एक अजीब बात कही। उन्होंने अपने पास बैठे लोगों से कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप अब भी इसी पुराने ख्याल में मुब्तला हैं। यूसुफ को मेरे हुए बरसों गुजर गए, अब खुशबू कहाँ से आएगी? लेकिन मोहब्बत के एजाज को अक्ल किया समझे। जब काफिला पहुंचा और खुशखबरी सुनाने वाले बशीर ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो इसी लम्हे उनकी आंखों का नूर लूट आया। वो फिर से देखने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? भाइयों ने बाप से मुआफी मांगी, अब्बा जान, हमारे लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ करें, हम वाकई बहुत बड़े गुनाहगार थे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब में अपने रब से तुम्हारी बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। इसके बाद हिजरत की तैयारियां शुरू हुईं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपना पूरा खानदान, बीवियां, बेटे, पोते पोतियां, कल तकरीबन 70 अफराद लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। ये एक तारीखी हिजरत थी जिसने बनी इसराइल को फलस्तीन से मिस्र मुंतकिल कर दिया। उधर मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जब काफिला शहर के करीब पहुंचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद इस्तकबाल के लिए बाहर निकले। बादशाह मिस्र और पूरी फौज भी इस्तकबाल में खड़ी थी। बाप और बेटे की मुलाकात का मंजर अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। 40 साल की जुदाई, आंसू, हिचकियां और फिर गिले मलना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन, वालिद और खाला को इज्जत के साथ शाही महल में लाए और अपने तख्त पर बिठाया। और फिर वो लम्हा आया जिसकी खबर बचपन के ख्वाब ने दी थी।
जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे, उनके 11 भाई और वालिदैन सब तज़ीम के तौर पर उनके सामने सजदे में गिर गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद की तरफ देखा और फरमाया, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, ये है मेरे इस पुराने ख्वाब की ताबीर। मेरे रब ने इसे सच कर दिखाया। कुएं की तारीकी से शुरू होने वाला सफर आज तख्त शाही पर मुकम्मल हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए मेरे रब, तूने मुझे बादशाहत दी, मुझे इल्म सिखाया, भाइयों के हसद से निकाला, जेल से रिहाई दी और मेरे घर वालों को मुझसे मिला दिया। बेशक मेरा रब जो चाहे तदबीर से कर लेता है। और आखिर में दुआ की, ए अल्लाह, मुझे इस्लाम पर मौत देना और नेक लोगों के साथ मिला देना। मेरे भाइयों और बहनों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, हिम्मत ना हारो। कुनवा हो या जेल, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। इंसान की असल ताकत इसका किरदार है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में रहकर भी अपना किरदार नहीं छोड़ा। इसी किरदार ने उन्हें तख्त तक पहुंचाया। बदला लेने में वो मजा नहीं जो मुआफ करने में है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को मुआफ करके उन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया, मोहब्बत का गुलाम। हम कुछ प्लान करते हैं, अल्लाह कुछ और प्लान करता है, और अल्लाह का प्लान हमेशा बेहतरीन होता है। मेरे दोस्तों, पिछले बाब में हमने देखा कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को मुआफ किया और अपनी कमीज भेज कर वालिद की बीनाई लौटाई। अब हम इस अजीम दास्तान के सबसे खूबसूरत और जज्बाती मंजर की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, जिनकी कमर यूसुफ की जुदाई ने झुका दी थी और आंखें रोने से सफेद हो गई थीं, अब अल्लाह के फजल से दोबारा देख सकते थे और अपने खोए हुए यूसुफ से मिलने जा रहे थे। कनान से मिस्र तक का ये सफर, जो कभी भूख और मजबूरी का सफर था, अब खुशी और उम्मीद का सफर बन चुका था। पूरा खानदान, जिसमें हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवियां, बेटे बहुएं और पोते पोतियां शामिल थे, सब मिस्र की तरफ रवा दवा थे। ये वही खानदान था जिसे तारीख बनी इसराइल के नाम से याद करती है। उधर मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए शाहाना इंतजामात किए। अब शहर से बाहर निकलकर एक मकाम पर अपने वालिद का इंतजार करने लगे। रवायात में आता है कि मिस्र के बादशाह ने भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशी में शिरकत की और अपने लश्कर के साथ इस्तकबाल के लिए निकला। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम था कि एक गैर मुल्की खानदान को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। जब काफिला नजर आया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सवारी से उतरकर अपने वालिद की तरफ कदम बढ़ाए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि सामने एक बादशाह खड़ा है, जिसके चेहरे पर नबुवत का नूर और शाही दबदबा है। बाप और बेटे की ये मुलाकात जमीन व आसमान ने दोबारा नहीं देखी। 40 साल का फिराक, 40 साल के आंसू और दुआएं आज कबूल हो चुकी थीं। दोनों गिले मिले और देर तक रोते रहे। कुरान करीम ने इस मंजर को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। फिर जब वो यूसुफ के पास पहुंचे तो इसने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और गिले लगा लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें इज्जत व तकरीम के साथ शाही महल में लाए। उन्होंने अपने वालिदैन को अपने तख्त पर बिठाया। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बेटा जो कभी कुनवे में था, आज मिस्र के तख्त पर अपने वालिदैन को बिठा रहा है। ये अल्लाह का इनाम था इस सब्र का जो उन्होंने सालों तक किया। महल में दाखिल होते ही एक अजीब वाकया पेश आया। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन के ख्वाब को सच कर दिखाया। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे, वालिदैन तख्त पर थे, तो 11 भाई और वालिदैन सब के सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने तज़ीमी सजदे में गिर गए। यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि पिछली शरीयतों में तज़ीमी सजदा बतौर सलाम व एहतराम जायज था, जैसे फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को किया था। लेकिन शरीयत मोहम्मदी में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना हराम करार दिया गया है। जब सब सजदे में थे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद की तरफ देखा और मुस्करा कर फरमाया, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, ये है मेरे इस ख्वाब की ताबीर जो मैंने बचपन में देखा था। मेरे रब ने इसे सच कर दिखाया है। वो 11 सितारे, भाई और सूरज और चांद, वालिदैन आज वाकई उनके सामने झुके हुए थे। अल्लाह की तदबीर मुकम्मल हो चुकी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर अपनी जहानत, ताकत, मंसूबा बंदी का जिक्र नहीं किया, बल्कि हर चीज को अल्लाह की तरफ मंसूब किया। उन्होंने फरमाया, मेरे रब ने मुझ पर एहसान किया जब उसने मुझे कैद खाने से निकाला। गौर तलब बात यह है कि उन्होंने कुएं से निकालने का जिक्र नहीं किया, हालांकि वो ज्यादा बड़ी मुसीबत थी। उलमा फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि भाइयों को कुएं वाली बात याद दिलाकर शर्मिंदा किया जाए, क्योंकि उन्हें तो वो मुआफ कर चुके थे। इसलिए सिर्फ जेल का जिक्र किया जिसमें भाइयों का कोई कसूर नहीं था। यह है एक नबी का आला अखलाक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए फरमाया, और अल्लाह का एहसान है कि वो अब सबको देहात, कनान
से यहाँ ले आया बाद उसके कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल दिया था। बेशक मेरा रब जो चाहता है तदबीर से करता है, वही सब कुछ जाने वाला और हिकमत वाला है। यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों के गुनाह को भी शैतान का कारनामा कहकर उनका दिफा किया ताकि उनके दिल में कोई बोझ ना रहे। इसके बाद जब दुनिया की हर नेमत कदमों में थी, बादशाहत थी, खानदान था, इज्जत थी, तो इंसान आम तौर पर दुनिया में मगन हो जाता है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस उरूज के वक्त भी अल्लाह से जो दुआ मांगी वो हर मुसलमान के लिए लायहा अमल है। अपने तख्त पर बैठे बैठे हाथ उठाए और अर्ज की, ए मेरे रब, तूने मुझे बादशाहत अता की और मुझे ख्वाबों की ताबीर और बातों की तह तक पहुँचने का इल्म सिखाया। ए आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तो ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। मुझे इस्लाम की हालत में मौत देना और मुझे नेक लोगों के साथ मिला देना। ये दुआ बताती है कि मोमिन का असल हदफ इक्तदार नहीं बल्कि ईमान पर खात्मा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये तख्त और ताज आर्जी हैं, असल कामयाबी ये है कि इंसान अल्लाह के हुजूर मुसलमान बनकर पेश हो। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और उनका खानदान मिस्र में आबाद हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वफात तक मिस्र पर अदल और इंसाफ के साथ हुक्मरानी की। रवायत में आता है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में 17 साल तक हयात रहे और फिर वसीयत की कि उन्हें वापस उनके आबाई वतन फलस्तीन में दफन किया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद की वसीयत पूरी की। मेरे भाइयों और बहनों, कुनवे से तख्त शाही तक का ये सफर हमें जिंदगी गुजारने के चंद सुनहरी उसूल सिखाता है। हालात कितने ही बुरे क्यों ना हों, अल्लाह पर यकीन रखें। जो खुदा यूसुफ को कुनवे से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना सकता है, वो आपकी मुश्किलात भी दूर कर सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में भी काम किया, गुलामी में भी मेहनत की और बादशाहत में भी अदल किया। कामयाबी शॉर्टकट से नहीं, किरदार से मिलती है। इंतकाम लेने से इंसान सिर्फ एक बार जीतता है, लेकिन मुआफ करने से वो हमेशा के लिए दिल जीत लेता है। ताकत मिलने पर फिरौन नहीं बनना चाहिए, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह आजिज बनकर खुदा की खिदमत करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और उनका खानदान मिस्र में आबाद हो चुका था। अल्लाह ताला ने उन्हें वहां इज्जत, सुकून और खुशहाली अता फरमाई। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा गम और जुदाई में गुजारा था, अब अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम अपने महबूब बेटे यूसुफ के पास इत्मीनान से गुजार रहे थे। तारीखी रवायत के मुताबिक हजरत यकूब अलैहिस्सलाम मिस्र आने के बाद तकरीबन 17 साल जिंदा रहे। ये 17 साल उनकी जिंदगी के बेहतरीन साल थे, जहां हर तरफ उनकी औलाद खुशहाल थी और अल्लाह की नेमतों की बारिश थी। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को मफिर नहीं, चाहे वो अल्लाह का नबी ही क्यों ना हो। जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने तमाम बेटों, उस समेत 12 बेटों को अपने पास जमा किया। ये वो मौका था जब एक नबी अपनी औलाद को आखिरी वसीयत कर रहा था। कुरान मजीद ने सूरा बकरा में इस मंजर को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने बिस्तर मर्ग पर अपने बेटों से पूछा, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? गौर कीजिए, आखिरी वक्त में उन्हें अपनी जायदाद, माल, हुकूमत की फिक्र नहीं थी, बल्कि अकीदे और ईमान की फिक्र थी। वो चाहते थे कि उनकी औलाद तौहीद पर कायम रहे। बेटों ने एक ज़बान होकर जवाब दिया, हम आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के माबूद यानी एक अल्लाह की इबादत करेंगे और हम इसी के फरमाबरदार रहेंगे। ये जवाब सुनकर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को सुकून मिल गया। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक खास वसीयत की, ए बेटा, जब मैं फौत हो जाऊं तो मुझे मिस्र में दफन न करना, बल्कि मुझे मेरे आबाई वतन कनान/फलस्तीन ले जाना और मेरे बाप इसहाक और दादा इब्राहिम के पहलू में दफन करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वदा किया कि वो ऐसा ही करेंगे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और तमाम अहल मिस्र ने सोग मनाया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से इजाजत ली और एक अजीम अलशान काफिले के साथ, जिसमें मिस्र के उमरा और फौज भी शामिल थी, अपने वालिद का जसद खाकी लेकर फलस्तीन गए। वहां गुगार मिकपीला, मौजूदा शहर अल खलील/हिब्रन में उन्हें दफन किया गया। ये वही जगह है जहां आज भी हजरत इब्राहिम, इसहाक और यकूब के मज़ारात मौजूद हैं। वालिद की तदफीन के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस मिस्र आ गए। अब वो खानदान के सरबराह भी थे और मिस्र के हुक्मरान भी। उन्होंने अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत जारी रखी। उनके दौर में मिस्र खुशहाली की बुलंदियों पर पहुंच गया। बनी इसराइल, यकूब की औलाद की तादाद में भी इजाफा होने लगा। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की नस्लों में बरकत दी और वो मिस्र में एक ताकतवर कौम बन गए। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये दुनिया फानी है। वालिद की वफात के बाद उनका दिल भी दुनिया से उचाट हो गया था।
وہ اکثر اللہ سے ملاقات کی دعا مانگتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اصل گھر جنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی وفات کیسے ہوئی اور مرتے وقت انہوں نے اپنی قوم کو کیا بشارت دی، یہ ہم آخری حصے میں بیان کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مزید کچھ عرصہ روایات کے مطابق 23 سال زندہ رہے۔ اب کی کل عمر کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن مشہور روایت کے مطابق اپنے 110 سال کی عمر پائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے بھی اپنے بھائیوں اور خاندان کے لوگوں کو جمع کیا۔ اب جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں حالات بدل سکتے ہیں۔ اپنے بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ اللہ کے دین پر قائم رہنا اور یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں یہاں مصر میں ہمیشہ نہیں رکھے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تم میں سے ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے گا، جو تمہیں یہاں سے نکال کر واپس تمہارے آبائی وطن فلسطین لے جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تاکید کی کہ جب تم یہاں سے نکلو تو میری ہڈیاں، میرا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانا اور مجھے میرے باپ دادا کے پاس دفن کرنا۔ یہ وصیت کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ مصر میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ اپنے مہربان اور عادل حکمران کے لیے روئے۔ چونکہ ہر محلے اور علاقے کے لوگ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہمارے پاس ہو تاکہ برکت حاصل ہو، اس لیے جھگڑا ہونے کا ڈر تھا۔ آخرکار یہ طے پایا کہ آپ کو دریائے نیل کے درمیان میں ایسی جگہ جہاں پانی تقسیم ہوتا ہو، سنگ مرمر کے تابوت میں دفن کیا جائے تاکہ آپ کی برکت کا پانی پورے مصر کو سیراب کرے۔ یوں آپ کو عارضی طور پر وہی امانت کے طور پر دفن کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک مصر میں عزت کے ساتھ رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مصر کے مقامی حکمران فرعون بدلتے گئے۔ ایک ایسا دور آیا جب مصر کے بادشاہ فرعون بنی اسرائیل کو بھول گئے اور ان کے احسانات کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بظاہر ختم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ یہی وہ ظلم تھا جس کے خاتمے کے لیے اللہ نے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی نکالا اور انہیں ساتھ لے جا کر فلسطین اس کے قریب دفن کیا۔ میرے معزز سامعین، کنویں سے تخت شاہی تک کی یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ عروج و زوال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو بھائی یوسف کو مٹانا چاہتے تھے وہ محتاج ہو گئے، جس یوسف کو بیچا گیا وہ خریدار بن گیا، جسے جیل بھیجا گیا وہ حکمران بن گیا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں، دیانتدار ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی سازش آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ معافی اور کردار کی عظمت ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہی یوسفی کردار پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عظیم قصے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کے لائک کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا ایک لاکھ کسی کے لیے ہدایت اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، اگر میرے اس بیان میں کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو تو گزارش ہے کہ درگزر فرمائیں اور مؤدبانہ انداز میں کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور لکھیں تاکہ آئندہ کے لیے اصلاح اور بہتری کی گنجائش پیدا ہو سکے۔ اے اللہ، ہمیں نفع بخش علم عطا فرما، ہمارے سینوں کو حکمت کے لیے کھول دے اور ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی بصیرت نصیب فرماؤ، آمین۔ اے میرے رب، ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور مرتے دم تک ایمان کی سلامتی عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں او آمین لکھ کر اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے ہدایت اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مزید اسلامی ویڈیوز اور انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اطلاع بر وقت اب تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ایمان افروز موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یوسف